जो हम एनसीईआरटी के जो सिलेबस कर रहे हैं उसी एपिसोड में आज हम क्लास 7 के जो चैप्टर 5 है उसको आज हम करेंगे। तो जो चैप्टर 5 है वो कम्प्लीटली रिलेटेड है लाइन और एंगल से। तो क्लास 6 में और 5th में आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे जो कंसेप्ट है उसको आप स्टडी कर चुके हो, ठीक है, कि लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल, ये सब क्या होता है। लेकिन इसको भी हम 1 बाय 1 समझेंगे, उसके बाद ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे। तो चलिए हम इस क्लास के जो फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है वो है लाइन। तो चलिए हम समझते हैं कि लाइन क्या होता है। लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट एंड at least 2 point is needed for a line. Okay, it is a collection of point, so we can point. So after joining one point to another point we can form a line, and line is produce in both side in up to infinite, means that we can produce line in both direction up to infinite. So line is the collection of, line is represented by a and b, a and b. So point is an object, point is an object which does not have object which does not have any length and breadth. So we can say dot is a point, and we can observe here dot have any length or breadth. Okay, in a point there is no any length. Segment, line segment, it is a portion of line. Line segment is the portion of line and ending with dot on both side, on both side. Okay, we can take one example for this one. Suppose that it is a line AB, and we can cut any 2 point on a line AB, that is C and D. After cutting C, D, ending with dot on both side, so it is a portion of represented by a bar. Suppose that AB is a line segment. Okay, so we can represent line segment by bar. So always understand, line is represented arrow on both side, line segment is represented by dot on both side, and line segment is represented by AB in their power bar. So it is a line segment. समझने का what is ray, what is ray. Again it is a portion of line, it is a portion of line and starting with dot and ending with arrow on other side. It is a line, it is a line segment. Then after C and D, okay, यहाँ पर इसको हम अलग से पुट करते हैं तो C और D क्या हो जाएगा, ये रे हो जाएगा. So what is ray? Ray is the portion of line and starting with dot, ये डॉट से स्टार्ट होगा और ये एरो से एंड होगा. सो इट इज़ ए रे. ओके, इसके अपोजिट में भी हो सकता है, ये इधर का भी जो है ये भी क्या है, इट इज़ एंगल. ओके, व्हेन टू रे started with same common point, then figure form
इज एन एंगल। ओके, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एंगल क्या होता है। सपोज़ ये फर्स्ट रे है और ये सेकेंड रे है और दोनों क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। तब इसके बाद जो फिगर बनेगा दैट इज़ अ एंगल। क्लियर। एन ओ ए एंड ओ बी। अब बट यहाँ पर हमको वन चीज़ रिमेंबर रखना है कि जो ओ ए है एंड ओ बी है, इसको हम यहाँ पर अब रे नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इसका नेम चेंज हो जाएगा और इसको हम यहाँ पर बोलेंगे आर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्म्स। तो ओ ए एंड ओ बी इक्वल टू आर्म्स एंड ओ इज originated point and originated point is known as vertex of angle. First one is straight angle. First one is straight angle. Okay, what is straight angle? The angle between two rays, the angle between two rays is equal to 180 degree. How much? कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, व्हाट इज स्ट्रेट एंगल? सपोज ये ओरिजिन स्टार्टिक पॉइंट, यहाँ से एक अदर रे बी और यहाँ से ये ए, इनके बीच में जो एंगल है दैट इज़ अ स्ट्रेट है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। एंड इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच, 180। सेकेंड वन इज राइट एंगल, राइट एंगल। ओके, when the angle between two arms is a completely 90 degree, then it is a right angle. Okay, first arm OA and second one is OB and their angle is equal to how much, 90 degree, so it is a right angle. Third one is complementary angle, complementary angle. The sum of two angle, the sum of any two angle is equal to 90 degree. The sum of any two angle is equal to 90 degree. And there is one common line. Suppose that O is a common origin point, OA OB, ठीक है। अब यहाँ से ये C है, AOB एंड BOC, ठीक है, AOC एंड BOC। यहाँ पर कोई सा भी एंगल बन रहा है, सपोज ये θ1 और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, ये θ2 है। इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। तभी इसको हम क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे, ठीक है। अब राइट एंगल में क्या था कि वो कंप्लीट था, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ एंगल कितना था, कंप्लीट था। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन लाइन है, क्या है, ये कॉमन रेस OC है। ये जो OC है वो इस एंगल के लिए भी यूज़ हो रहा है और वो इसके लिए भी यूज़ हो रहा है। सो OC इज़ ए कॉमन। सो ओके, फॉर एग्जांपल्स 30 डिग्री और 60 डिग्री। सपोज दैट θ1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 30 है, और जो θ2 का वैल्यू है वो कितना है, 60 है। तो इन दोनों का जो वैल्यू को जब सम कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमको, 90 मिल रहा है। सो इट इज़ अ कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल। देखते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री एंगल, द सम ऑफ एनी टू एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तभी इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। चलिए इसके लिए हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये O क्या हुआ, ओरिजिन पॉइंट हुआ OA और ये OB, ठीक है। सपोज ये यहाँ पर एक अदर रे है जिसका नेम क्या है, ये C है। तो AOC फर्स्ट एंगल हुआ एंड BOC ये सेकेंड एंगल हुआ। तो इन दोनों का जो सम होगा θ1 प्लस θ2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये 180 होना चाहिए। तभी क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा।
इसको हम अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं कि AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, ऑलवेज रिमेंबर इन सप्लीमेंट्री एंगल द सम ऑफ एनी टू एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. नेक्स्ट एंगल देखते हैं. जो नेक्स्ट एंगल है हम लोगों का वो है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री. ओके, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री. ओके, फॉर एग्जाम्पल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड अप टू 90 and up to 90. So greater than 0 and less than 90, either we can say 90. So that is the acute angle. Next देखते हैं obtuse angle. Obtuse angle, an angle which is greater than 90 degree, greater than 90 degree and less than 180 degree. Greater than 90 degree means 91, 92 and less than to 180, that is 179, 178. So it is a obtuse angle. Next angle देखते हैं what is, that is a reflex angle. Reflex angle. Okay, what is a reflex angle? Reflex angle is always calculated from 360 degree, means that we can calculate the value of reflex angle. एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, A, O and B. ओके, AOB इक्वल टू सपोज 30 डिग्री है. देन कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल एंड इट इज़ द आउटर एंगल ऑफ एनी गिवन एंगल. सो रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री. कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 330 डिग्री. सो हमको रिफ्लेक्स एंगल में क्या चीज़ का रिमेंबर रखना है कि इसको हम ऑलवेज क्या करते हैं, 360 से माइनस करते हैं. लास्ट एंगल देखते हैं हम लोगों का. लास्ट एंगल जो है वो रिलेटेड है कंप्लीट एंगल से. तो व्हाट इज़ कंप्लीट एंगल? कंप्लीट एंगल, द सम ऑफ एनी टू एंगल इज इक्वल टू ऑलवेज 360 डिग्री. द सम of any two angle is equal to 360 degree. Suppose that any common point O and O is a ray and their angle is started from O and again that is a overlap. So we can draw other OA and OA, means that the complete angle is equal to 3. हम फर्स्ट देखते हैं कि find out the complementary angle of given figure. ठीक है, एक इसमें हमको फिगर गिवन है. एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है ये 20 डिग्री है. ठीक है, क्या है? 20 डिग्री. ओ ले लिए, ये OA हुआ और ये OB हुआ. ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना है? कम्प्लीमेंट्री एंगल कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि जो एंगल का सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है? 90 डिग्री होता है. ठीक है, क्या होता है? 90 डिग्री. तो यहाँ से हम θ1 प्लस θ2 इक्वल टू होता है 90 डिग्री. ठीक है, वन एंगल कितना है? 20 है. तो यहाँ से हम θ2 निकाल लेंगे तो कितना मिल जाएगा? 90 से उसको हम माइनस कर लेते हैं. तो 90 माइनस 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री. तो जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है, जो सेकंड एंगल है वो कितना है? 70 डिग्री है. अदर एग्जांपल ये है 63 है. कितना है? 63. अब यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल हमको कैलकुलेट करना है. तो क्या हो जाएगा? θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री. वन एंगल कितना हमको प्रोवाइड किया गया है? 60 डिग्री. 63 डिग्री है. ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 90 में इसको हम माइनस कर देते हैं. तो 90
माइनस 63 इक्वल टू 7, कैरी हुआ 1, ये 27। तो हम लोग का जो सेकेंड एंगल हो जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 27। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको आप सेल्फ ट्राई करेंगे, ठीक है, उसको आप समझेंगे, बहुत इजी हो भी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। फाइंड आउट द सप्लीमेंट्री एंगल। फाइंड आउट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ गिवन फिगर। ओके, सपोज दैट इसमें हमको क्या गिवन है 100, ये 5 है। कितना है 105। ये अगेन ओ ए क्या हुआ, रे हुआ, ये ओ बी अदर रे हुआ। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल द सम ऑफ एनी टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो θ1 कितना गिवन है हमको 105 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से ये θ2 इक्वल टू 180। ओके, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। θ2 इक्वल टू 180 माइनस 105। ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हुआ, ये 7 हुआ। तो हमको कितना मिला, जो सेकेंड एंगल है वो 75 मिलेगा इनका सेकेंड, ठीक है। इसमें भी हमको क्या फाइंड आउट करना है, सप्लीमेंट्री एंगल ही फाइंड आउट करना है। और हमको जो वन एंगल गिवन है वो है 87 है। कितना है 87, ओ ए एंड बी। सो अगेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों वैल्यू का जो सम होता है वो 180 होता है ना। कितना होता है 180। तो वन एंगल कितना गिवन है 87 है। तो सेकेंड एंगल हमको यहाँ से कितना मिल जाएगा माइनस करने से। तो θ2 इक्वल टू 180 माइनस 87 इक्वल टू, ये माइनस कर दिया तो 3 हुआ, और ये 18 में से 9 गया तो 9, ये हमको कितना मिल जाएगा 93, ये मिल जाए। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द गिवन पेयर इज द कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई गिवन क्वेश्चन इज द सप्लीमेंट्री एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल। सो ऑलवेज रिमेंबर देयर डिफिनेशन। यदि हमको डिफिनेशन पता है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये 65 है, सपोज कितना है 65 एंड 115 है, ठीक है। ये क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट है। अब इसमें हमको क्या रिमेंबर रखना है कि दोनों का सम यदि 90 मिलता है तो कम्प्लीमेंट्री एंगल है, और दोनों का सम यदि 180 मिलता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो θ1 प्लस θ2 कर लेते हैं, ठीक है। तो θ1 इक्वल टू 65, θ2 इक्वल टू 115, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 5 0 10, और ये हो गया 180। तो ये इट इज़ अ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड थर्ड फोर्थ है उसको कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि 63 और 27 है, ठीक है। इसी में ही क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं, 63 एंड 27। तो 63 और 27 को यदि हम प्लस करते हैं, 63 एंड 27 को ऐड करने से हमको कितना मिल रहा है 90 डिग्री मिल रहा है। सो इट इज़ अ कम्प्लीमेंट्री एंगल। बहुत इजी है ये सब को अच्छे से करने के लिए। आपको जितने सारे जो प्रॉपर्टी है उसको आप अच्छे से करिएगा, उसको अच्छे से समझिए, तब वो बढ़िया से बन पाएगा। इन क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम ये समझते हैं कि फाइंड आउट द पेयर ऑफ एंगल देयर सम इज़ ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आपको उसमें गिवन है कि आपको ऐसे एंगल का पेयर फाइंड आउट करना है जो क्या हो कम्प्लीमेंट्री एंगल हो, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफिनेशन क्या होता है कि उन दोनों का जो एंगल का सम है, एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है उसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, लेट द कम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स। कितना है ये एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स इन दोनों को सम करने से कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री बोल रहा है तो एक्स और एक्स कितना हो गया 2x इक्वल टू 90, ठीक। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 45, ठीक है। तो ऐसे टू कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है वो 45 है, जिसको हम सम करेंगे तो कितना मिलेगा 90 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 से, है ना। कि इसमें क्या करना है हमको, अब सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट अ पेयर ऑफ एंगल देयर सम इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप सप्लीमेंट्री एंगल का डिफिनेशन जानते हैं कि दोनों का सम क्या होता है, और वो एंगल आप एक्स कंसीडर करके आप इसको आप सेल्फ
ट्राई करेंगे, या फिर चलिए हम इसको कर भी लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेट द नंबर बी एक्स, वो नंबर क्या है या फिर एंगल क्या है, एक्स है। तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 2x इक्वल टू 180, ठीक है। तो x इक्वल टू 180 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। तो ठीक है, फाइंड आउट द पेयर ऑफ एंगल देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसका जो पेयर है वो कितना हो जाएगा, 90 एंड 90 हो जाएगा। सो इट इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या करना है कि जो गिवन फिगर है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, लेकिन उसमें वन एंगल को यदि हम इंक्रीज़ करते हैं तो जो सेकेंड एंगल है उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या फर्स्ट एंगल को हम जब डिक्रीज़ करते हैं तो सेकेंड एंगल इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, इसको हमको समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक डायग्राम गिवन है हमको, ये सपोज़ O और ये A और ये B हुआ। तो ये यहाँ से क्या है, एक अदर रे है, एंगल 1 एंड एंगल 2, ओके, ठीक है। अब इसमें इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होगा, ओके। सो जब ये 180 हो रहा है तो इट इज़ अ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब यदि हम इसमें एंगल 1 को इंक्रीज़ करते हैं तो या डिक्रीज़ करते हैं तो एंगल 2 में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो सपोज़ हम एंगल 1 को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। डिक्रीज़ करेंगे मीन्स ये इधर आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ यहाँ से हम चलिए ट्राई करते हैं एक और डायग्राम ड्रॉ करके, ये ए हुआ, ये बी हुआ, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इधर लाएंगे तो क्या होता जाएगा, ये डिक्रीज़ होता जाएगा, यहाँ ले आए, ठीक है। इसको ऐसा कर दिए तो इसका वैल्यू क्या हो गया, एंगल 2 का वैल्यू इंक्रीज़ हो गया। तो इससे क्या क्लियर हुआ, वन वैल्यू को यदि हम इंक्रीज़ करते हैं तो सेकेंड वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज़ होता है।